خوشیاں مناؤ سید ابرار آ گئے، ارے پڑھ لو درود مومنو سرکار آ گئے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلے اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، بلبلے اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کے پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خارگی کفن رہ جائے گا۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج یہ کل ہماری باری ہے۔ حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، آئیے اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے ہم اور آپ حضرات مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین جان عالمین طہ یاسین گنبد خضرا میں آرام کرنے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ بڑے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مدنی الکرم علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت محترم، آج کی رات ہم اور آپ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے، ہمیں دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور جیسا کہ مجلس سال ثواب کے لیے رکھی گئی، میں دعا کرتا ہوں مولا جتنے لوگ یہاں پر حاضر ہیں، ان کے خاندان میں جتنے مردے ایمان کے ساتھ گئے، مولا سبھی کی روح کو اس کا ثواب پہنچائے اور انہیں کروڑ جنت عطا فرمائے۔ آپ حضرات نے سر شام سے بڑی اچھی نعتیں اور ایک مختصر اور مگر عمدہ بیان آپ حضرات نے سماعت کر لیا۔ رات کے 11:30 بج چکے ہیں، ابھی میرے بعد بھی آپ حضرات کو شاعر اہل سنت بلبل باغ مدینہ حضرت علامہ مولانا انیس صاحب اللہ سے پھر نعت سننی ہے۔ میں 12 بجے تک اپنی مرضی سے بولوں گا، چاہے آپ سنیں اور چاہے نہ سنیں، اور اس کے بعد پھر آپ کی مرضی سے بولوں گا۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا۔ اللہ نے پوری کائنات کے اندر 18,000 عالم کو پیدا کیا ہے۔ وہ چاہتا تو کسی بھی مخلوق میں پیدا کر دیتا، وہ چاہتا تو جانور بنا سکتا تھا، وہ چاہتا تو کیڑے مکوڑے بنا سکتا تھا، لیکن 18,000 عالم میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔
اور پھر انسان بنا کر کے انسانوں میں جو سب سے اچھے انسان جنہیں ایمان والا کہا جاتا ہے، اللہ نے وہ ایمان کی دولت ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو چند سالوں کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے، اپنی زندگی گزار کر کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ نے زندگی دی اور پھر وہی پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو موت بھی دے گا۔ تو آخر یہ موت و زندگی کا فلسفہ کیا ہے؟ اگر اللہ کو مارنا تھا تو پیدا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر پیدا کر دیا تو مارنا نہیں چاہیے۔ یہ اللہ نے پیدا کیا پھر موت دیتا ہے، آخر اس موت و زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا اس لیے کہ وہ ہمیں آزمائے کہ ہم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ گویا کہ انسان کی یہ چند سالہ زندگی جو اس کو دے کر کے دنیا میں بھیجا گیا ہے، وہ اس لیے دے کر کے بھیجا گیا تاکہ ہم اور آپ اس دنیا میں آ کر کے اچھے اعمال کریں، اور جب پلٹ کر کے اس رب کی بارگاہ میں جائیں تو پروردگار عالم ہمیں اس سے بھی بہتر زندگی دینے کے لیے جنت جیسی عظیم نعمت کو پیدا فرما رہا ہے۔ تو اللہ نے زندگی کو پیدا کیا، موت کو پیدا کیا، اور یہ زندگی ہمیں اور آپ کو دی چند سالہ تاکہ وہ ہمیں دیکھے کون ہم میں سے اچھا عمل کرتا ہے۔ تو گویا کہ ہماری اور آپ کی زندگی اچھے عمل کے لیے ہے، لیکن آج انسان دنیا میں آنے کے بعد کوئی دولت کے نشے میں چور ہو کر کے اپنے ایمان کا سودا کر لیا کرتا ہے، کوئی شہرت کے نشے میں چور ہو کر کے اپنے ایمان کا سودا کر لیا کرتا ہے، کوئی کسی دنیاوی خرافات میں پھنس کر کے اپنا ایمان پیش ڈالتا ہے۔ اے میرے دوستو، میں آپ کو بتاؤں، آج یہ محفل جو ایصال ثواب کے لیے رکھی گئی، میں آپ کو ایصال ثواب کی حقیقت بتاتا ہوں اور اس پر روشنی ڈال کر کے اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہمیں اللہ نے پیدا کیا تھا اچھے عمل کرنے کے لیے، لیکن انسان دنیا میں آیا تو اچھا عمل بھی کرتا ہے اور برا عمل بھی کرتا ہے۔ انسان کچھ اچھائی کرتا، کچھ برائی کرتا ہے، اور اچھائی اور برائی کرتے کرتے وہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو اس کے دنیا سے جانے کے بعد، آدمی کے انسان کے دنیا سے جانے کے بعد، اب کیا اس کے لیے بھی ثواب کا کوئی راستہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ ہم سنی مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ جب ہمارے گھر سے کوئی جاتا ہے تو قبر ہی سے ہم ایصال ثواب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مردے کو دفن کیا، دفن کرنے کے بعد جب ہم مٹی وغیرہ برابر کر لیتے تو کھڑے ہو کر کے وہی فاتحہ پڑھتے ہیں، اور فاتحہ پڑھنے کے بعد جب لوگ چلنے لگتے ہیں تو ہم ایک آدمی کو کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ وہ اذان دینا شروع کر دیتا ہے۔ آج کچھ لوگ اس اذان پر بھی اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں قبروں پر اذان نہیں دینا چاہیے، لیکن اس اذان کی حقیقت کیا ہے؟ تاریخ اسلام اٹھا کر کے دیکھو، یہ اذان کتنی بابرکت ہے۔ جب ہمارے اور آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے زمین پر بھیجا تھا، حضرت آدم جب پہلی مرتبہ زمین پر آئے اور زمین پر تشریف لانے کے بعد حضرت آدم کا دل بہت گھبرا رہا تھا، اس لیے کہاں سے کہاں آ گئے؟ اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل امین آتے ہیں، ایک پتھر پہ کھڑے ہو کر کے اذان دینا شروع کر دیتے ہیں۔ جب اذان کی کلمات حضرت آدم کے کانوں میں پہنچتے ہیں، اذان کی آواز سنتے ہیں، حضرت آدم کے دل کو سکون مل جایا کرتا ہے۔ گویا پتہ چلا کہ جب عالم اذان پکارتا ہے، اذان کی آواز کانوں میں پہنچتی ہے تو آدمی کے دل کو سکون و قرار ملا کرتا ہے۔ تو اذان وہاں بھی دی گئی۔ اور آج جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، مولانا صاحب آپ کو بتائیں گے، جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے داہنے کان میں اذان، بچہ پیدا ہوا تو داہنے کان میں اذان۔ قبر میں آدمی دنیا میں 50 سالہ 60 سالہ 70 سالہ زندگی گزار کر کے وہ قبر کی دنیا میں جاتا ہے، ہم نے اس کو دفن کر دیا، نہ جانے کتنے من مٹی اس کے اوپر ڈال دیا۔ اب جب کوئی قبر میں منکر نکیر آ کر کے اس کو جگاتے ہیں، وہ آدمی دیکھتا کہاں تھا کہاں آ گیا، ایسے میں اس کا دل گھبرانے لگتا ہے، ایسے میں اس کا دل پریشان ہونے لگتا ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں قبر پہ کھڑے ہو کر کے اذان دے دو، اذان کی آواز اس کے کانوں میں پہنچے گی، اس کے دل سے گھبراہٹ بھی دور ہو جائے گی۔ قبر پر کھڑے ہو کر کے اللہ و رسول کا نام پکارو گے، نکیر کے سوالات کے جواب میں آسانی بھی
इंसान पैदा हुआ, अच्छा अमल भी करता, बुरा अमल भी करता, तो ये तो जिंदगी में हर कोई करता है। लेकिन मरने के बाद क्या होता है? मरने के बाद भी सवाब पहुंचता कि नहीं पहुंचता, इसी पे बहस है। हमारे घर से कोई गया, हमने तीजा किया, 10वां किया, 20वां किया, 40वां किया, सालीना किया, इसाले सवाब करना कब्र ही से स्टार्ट कर दिया। कुछ लोगों के यहाँ से गए, उन्होंने कहा नहीं करना चाहिए, इसलिए कि सवाब नहीं पहुंचता है। अब ये दो मसले हो गए। हमारा अकीदा है कि जो इसाले सवाब किया जाता है ये मुर्दों को पहुंचता है। कुछ लोगों का अकीदा है ये इसाले सवाब जो किया जाता है मुर्दे को नहीं पहुंचता है, इसलिए वो नहीं करते, मना भी करते। वो हम करते हैं तो इतने बड़े पागल भी नहीं है कि करते हैं तो नहीं पहुंचता तो हम काहे के लिए करते। अब यही सवाल लेकर के आप जब मौलाना अली साहब के पास पहुंचोगे और कहोगे मौलाना साहब हम जो इसाले सवाब करते हैं तो हम तो करते हैं, लेकिन कुछ लोग मना करते हैं, कुछ लोग कहते नहीं पहुंचता है, हमारा अकीदा है पहुंचता है, ये बताओ सही कौन सा है? तो मौलाना अली साहब खड़े होकर के कहेंगे ये सवाब का पहुंचना और ना पहुंचना ये दोनों सही है। सवाब का पहुंचना और ना पहुंचना ये दोनों सही है। जैसे ही इन्होंने जवाब दिया कि दोनों सही है, आदमी फाड़ कस लेता है और कहता तुम्हें मौलवियों ने लड़ा लड़ा करके हम लोगों को फंसा रखा है। अरे सवाब का पहुंचना भी सही, ना पहुंचना भी सही, ये दोनों बातें कैसे सही हो सकती है? या तो पहुंचने वाली बात सही होगी या ना पहुंचने वाली बात सही होगी। तो मैं मिंबर रसूल से आपको आवाज दे रहा हूं, ये इसाले सवाब का पहुंचना ना पहुंचना ये इसाले सवाब करने वाले के ऊपर नहीं है, ये मरने वाले के ऊपर होता है। अगर मरने वाला हालत ईमान में दुनिया से जाता है, इसाले सवाब करोगे पहुंच जाएगा। मरने वाला बेईमान होकर दुनिया से जाता है, कितनी भी कोशिश कर लो उसको कुछ नहीं पहुंच सकता। और आज यही बातें इन लोगों के समझ में नहीं आई, वरना इनका एक मौलवी जिसे जर्जीस इब्ने इब्लीस कहा जाता है, उसका वीडियो आज भी मेरे पास है। उसने कहा मरने के बाद अगर कुरान पढ़ने से मुर्दे को फायदा होता, मुर्दे की बख्शिश होती, तो इंदिरा गांधी की मौत पर 3 दिन कुरान पढ़े गए, फिर इंदिरा गांधी की बख्शिश क्यों नहीं? उस जाहिल को इतना भी मालूम नहीं है कि इसाले सवाब उस तक पहुंचता है जो ईमान के साथ जाता है, जो बेईमान होकर दुनिया से जाता है, हालत कुफ्र में दुनिया से जाता है। 3 नहीं 3 लाख कुरान पढ़ करके बख्श दो, उसको कोई फायदा नहीं पहुंच सकता। अब मसला ये हल है, इसाले सवाब उसको मिलेगा जो ईमान के साथ जाएगा, इसाले सवाब उसे नहीं मिलेगा जो बेईमान होकर दुनिया से जाएगा। लेकिन अब एक सवाल मैं खुद करता हूं और एक सवाल पैदा भी होता है कि आदमी इंतकाल के बाद, आदमी के मरने के बाद ये कैसे पता लगाया जाए कि ये ईमान लेके गया कि नहीं गया? एक सवाल है। आदमी तो दुनिया में 50 साल नमाज पढ़ता रहा, रोजे रखता रहा, हज किया, ज़कात देता रहा, माँ बाप की खिदमत करता रहा, बहुत अमल किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मरते मरते हालत कुफ्र में दुनिया से चले जाते हैं। इसलिए उलमाए किराम बयान फरमाते आदमी पे जब मौत का वक्त आता है, जो मौत का वक्त होता है वो बड़ा भयानक होता है। ऐसे में आदमी को प्यास बड़ी सख्त लगती है, बहुत सख्ती के साथ उसे प्यास लगती है। इसलिए कहा गया कि जब आदमी पे मौत का वक्त आए तो उसे बार बार पानी पिलाया जाए, इसलिए कि वो वक्त बड़ा नाजुक वक्त होता है, बड़ी तकलीफ का वक्त होता है। ऐसे में जब उसे कोई सहारा देने वाला नहीं, उसके पास कोई पानी पिलाने वाला नहीं, उसे कोई तसल्ली देने वाला नहीं, इब्लीस से नहीं अपने हाथ में कटोरा लेके आता उसकी निगाहों के सामने और कहता तू बड़ा प्यासा है ना, एक बार मुझे खुदा कह दे पूरा पानी पिला दूंगा। ऐसे में जिसका ईमान बर्बाद होना मुकद्दर हो चुका होता है, दुनिया से जाते जाते इब्लीस को खुदा कह देता है, पूरी जिंदगी की नमाजें बर्बाद हो जाती है, पूरी जिंदगी के रोजे बर्बाद हो जाते हैं, पूरी जिंदगी के अमाल बर्बाद हो जाते हैं। मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ, मौत का वक्त इतना भयानक है, मौत का वक्त इतना सख्त है, तो फिर ये कैसे पता चले कि आदमी जो गया ईमान लेके गया कि नहीं गया? मरते मरते आदमी ईमान बचा के गया कि नहीं गया? जब ये सवाल आज से 100 साल पहले इस्राइली के इमाम महदी रज़ा खान से किया गया था और पूछा गया था आला हजरत ये बताइए मरने वाले के ईमान का पता कैसे लगाया जाए? तो आला हजरत ने कहा था मरने के वाले के मरने के बाद ईमान का पता लगाना है तो पलट करके उसके पीछे की जिंदगी देख ले। अगर वो जिंदगी भर नबी से मोहब्बत करता था, अगर वो जिंदगी भर नबी के नारे लगाता था, अगर वो जिंदगी भर नबी की मिलाद की खुशियां मनाता था, नबी की पैदाइश में शिरकत किया करता था और जिंदगी भर या नबी सलाम अलैका
बातिल हक में दुनिया से मुसलमान हो गया। अब आला हजरत ने बता दिया, आदमी मर गया, मरने के बाद उसकी जिंदगी पलट करके देख लो, अगर वो जिंदगी भर नबी वाला था, अगर वो जिंदगी भर नबी से मोहब्बत करता था, अपनी मस्जिदों में था तो या नबी सलाम अलैका पढ़ता था, अपने बिस्तरे पे था तो मुस्तफा जाने रहमत को बुलाता था, अपने घरों में था तो काबे के बदरुद दोजा पढ़ता था, नबी की मीरात होती थी तो शिरकत किया करता था, 12 रबीउल अव्वल की तारीख में नबी की पैदाइश की खुशियां मनाया करता था, जिंदगी भर या रसूल अल्लाह के नारे लगाता था। तो यही नबी की मोहब्बत होती है जो असल ईमान होती है। और आदमी अगर जिंदगी भर नबी से मोहब्बत करता है तो यही नबी की मोहब्बत मरते मरते उसके ईमान की हिफाजत करती है। और आदमी दुनिया से जाता है तो ईमान लेके जाता है, और सवाब उसे पहुंचता है जो ईमान लेके जाता है। लेकिन कल कोई लड़ाई नहीं करना, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता। अबू दाऊद शरीफ की एक हदीस आप उठा करके देख ले, हजरत अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और आने के बाद कहा था, या रसूलल्लाह मेरे बाप आस इब्न वाइल का इंतकाल हो गया। या रसूलल्लाह मेरा बाप आस इब्न वाइल मर गया, मगर या रसूलल्लाह मरते मरते मेरे बाप ने एक वसीयत किया था और मुझे भी कहा था, मेरे भाई उस्मान को भी कहा था, ऐ मेरे बेटो मैं तो दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन मेरे दुनिया से जाने के बाद तुम दोनों 50-50 गुलाम मेरी तरफ से आजाद कर देना। क्यों? इसलिए कि अगर मोहम्मद की बात सही निकल गई तो महशर में बचने का कुछ जरिया हो जाए। या रसूलल्लाह मेरा बाप इस तरीके से कह के दुनिया से गया और बाप के मरने के बाद मेरे दूसरे भाई उस्मान ने 50 गुलाम आजाद भी कर दिया, मगर या रसूलल्लाह मैं आपका कलमा पढ़ता हूँ, आका मेरे गर्दन में आपकी गुलामी का पट्टा पड़ा है, या रसूलल्लाह मैं आपका गुलाम हूँ, इसलिए आपकी बारगाह में आया हूँ, अगर इजाजत हो तो बाप की तरफ से 50 गुलाम आजाद कर दूं, और अगर कर दूं तो मेरे बाप को उसका फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर कर दूं तो मेरे बाप को उसका सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप अपने नबी का जुमला लिख लो, अपने दिल पर नोट कर लो और इस हदीस की रोशनी में फैसला खुद कर लो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ अमर इब्न आस सुनो, अगर तुम्हारा बाप मुसलमान होकर दुनिया से गया होता तो अपने बाप की तरफ से गुलाम आजाद करते, अपने बाप की तरफ से सदका करते, अपने बाप की तरफ से नमाजें पढ़ते, तो तेरे बाप को उसका सवाब पहुंच जाता। हालांकि तेरा बाप हालत कुफ्र में गया है, इसलिए तू कुछ भी कर ले, तेरे बाप को उसका सवाब नहीं पहुंच सकता। नबी की हदीस साफ लफ्जों में ऐलान कर रही है, जो मोमिन होकर दुनिया से जाता है मरने के बाद सवाब उसे पहुंचता है, जो काफिर होकर दुनिया से जाता है पूरी दौलत उठा दो उसको एक पैसे का फायदा नहीं हो सकता। ईसाले सवाब उसको मिलता है जो ईमान लेके जाता है, और अगर ईमान नहीं तो मरने के बाद भी कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं है। और मोमिन वही होता है, ईमान वही लेके जाता है जो जिंदगी भर मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत करता है, जो जिंदगी भर अपना सीना मोहब्बत रसूल का मदीना बना के रखता है। तो आप गौर करें कि आज जब हमारे घर से कोई जाता है, हमारे दरमियान से कोई जाता है, तो हम उसकी जिंदगी ही तो देखते हैं। ये जिंदा था तो हमारे साथ था, मस्जिदों में या नबी सलाम अलैकुम, मदरसों में मुस्तफा जाने रहमत, बिस्तरे पे था तो काबे के बदरुद दोजा, नबी की मिलाद की महफिलों में हाजिरी, नबी की पैदाइश की खुशियां हमारे साथ, हमारी मिलाद की महफिलों में हाजिरी दिया करता था, जिंदगी भर नबी से मोहब्बत करता था। जब हमारे दरमियान जिंदगी इस तरीके से गुजारने वाला जाता है तो उसके जाने के बाद हम 30, 10, 20, 40 और सालीने के तौर पर उसके नाम से इसाले सवाब करना शुरू कर दिया करते हैं, इसलिए कि हमें यकीन होता है हमारे घर से जो जाता है ईमान लेके जाता है, इसलिए हम इसाले सवाब करते हैं। लेकिन उन्हें भी मालूम होता है, यही था जो कहता था नबी के ख्याल से नमाज बातिल हो जाती है, यही था जो कहता था नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, यही था जो कहता था नबी को उतना इल्म है जितना जानवर को इल्म है। ऐसा गंदा अकीदा रख करके जिंदगी गुजारने वाला कसम खुदा की दुनिया से जाता है तो हालत कुफ्र में जाता है। इसलिए जब हमारे घर से कोई जाता है इसाले सवाब करना शुरू कर देते हैं, उनके घर से कोई जाता है इसाले सवाब नहीं करते हैं, और नहीं करते हैं तो अच्छा भी करते हैं, करेंगे भी तो कोई फायदा मिलने वाला नहीं, कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं। इसलिए कि नबी की हदीस से साफ लफ्जों में पता ये चलता है कि सवाब उसको पहुंचता है जो मोमिन होके जाता है, सवाब उसको नहीं पहुंचता जो काफिर होके दुनिया से जाता है। तो सवाब पहुंचता है मोमिन, सवाब पहुंचता है मोमिन को। लेकिन एक मसला, आज ये लोग जो सुन्नियों को
भड़काते, भोले भाले मुसलमानों को बहकाते और ये कहते कि मरने के बाद जिंदे का अमल मुर्दे के काम नहीं आता। यही सवाल होता है और सवाल हमसे नहीं होगा, सवाल मौलाना हनीफ साहब से नहीं होगा, सवाल इन उलमाए किराम से नहीं करते। अरे हमारा नौजवान है, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी लगा करके जा रहा है, उससे भी नहीं पूछेंगे, बल्कि देखेंगे कोई भोला भाला सुन्नी नौजवान मिल गया तो उससे जाके बहकाने की कोशिश करते। क्या तुम लोग 30वां 10वां 20वां 40वां करते हो? अरे मरने के बाद जिंदा करेगा, मुर्दे को क्या मिलेगा? जिंदे का अमल मुर्दे के काम नहीं आता। हमारा नौजवान ना जानने की बुनियाद पर उससे लड़ाई कर लेता है, झगड़ा कर लेता है, बहस करना शुरू कर दिया करता है। आज आपके गांव में एक बात बता के जा रहा हूं मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, कान खोल करके सुन लो और अपने दिल पे लिख लो। आज के बाद से जब कोई गैर मुकल्लिद, जब कोई वहाबी देवबंदी आपको मिल जाए और ये कहे जिंदे का अमल मुर्दे के काम नहीं आता, उससे लड़ाई नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, बहस नहीं करना, ये नहीं कहना मैं अपने मौलाना साहब से पूछ के बताऊंगा, बल्कि उससे सिर्फ इतना कहना कि अगर जिंदे का अमल मुर्दे के काम नहीं आता है तो फिर अपने माँ बाप की नमाज़े जनाजा मरने के 24 घंटा पहले क्यों नहीं पढ़ लेते? इसलिए कि ये जनाजा भी मुर्दे के लिए मगफिरत की दुआ है। ये जनाजा भी तो दुआ है मगफिरत की। अब आप गौर करें, आदमी मर गया, रिश्तेदारों को फोन जिंदा करता है, तख्ता जिंदा लाता है, कफन का इंतजाम जिंदा करता है, जिंदा नहलाता है, कंधे पे उठा के जिंदा ले जाता है, सबपति जिंदा करता है, नमाज़े जनाजा जिंदा पढ़ाता है, जिंदा पढ़ता है। अब अगर नमाज़े जनाजा ये मगफिरत की जो दुआ है, इससे मुर्दे को फायदा नहीं होता, इसलिए कि वो मर गया, तुम जिंदे हो और जिंदे का अमल मुर्दे के काम नहीं आता है, तो फिर अपने माँ बाप की नमाज़े जनाजा मरने के पहले तुम पढ़ना शुरू कर दो, बाद में और दलीलें हम देना शुरू करते हैं। लेकिन नहीं पढ़ते, हम भी मरने के बाद पढ़ते, वो भी मरने के बाद पढ़ते। और जनाजे से फायदा होता कि नहीं होता है? जनाजा ये मुर्दे के लिए मगफिरत की दुआ है और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ये हम और आप जो मुर्दे की नमाज़े जनाजा पढ़ते हैं, अगर जनाजा पढ़ा रहे हैं जिसकी हम और आप, अगर वो दुनिया से जाने वाला नेक है, जनाजे की चारपाई पर लेटा हुआ मगफिरत याफ्ता है, आका फरमाते हैं जितनी लोग उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ते हैं, अल्लाह मुर्दे के सदके में जिंदों को बख्श दिया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, माशाअल्लाह सुभान। अगर दुनिया से जाने वाला नेक है, अगर दुनिया से जाने वाला मगफिरत याफ्ता है, तो जितने लोग नमाज़े जनाजा पढ़ेंगे अल्लाह उसके सदके में सबको बख्श देता है। और अगर दुनिया से जाने वाला गुनहगार है, अगर दुनिया से जाने वाला बदकार है, आका फरमाते हैं उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ने के लिए जनाजे के लिए गए, जनाजे की सबबंदी हो गई और जनाजे की सबबंदी हो गई। आज रस्म है इमाम साहब को पहले नियत बताना है, बताना है उसको नियत। मान लीजिए आपके गांव में इमाम साहब पढ़ा रहे थे, ये बेचारे चले गए, मौलाना हनीफ साहब आ गए आपके यहाँ इमामत करने के लिए, उसी दिन किसी की मैयत हो गई, ये गए और जाने के बाद जनाजे की सबबंदी हो गई, डायरेक्ट नियत बांध लिया, जनाजे की नियत नहीं बताई, जनाजा खत्म होने के बाद उनकी खैरियत नहीं, इस्तीफा मुकर्रर है होटल पे बैठ करके। अब यही बात होगी, पहले हमारे मौलाना साहब थे, जनाजा पढ़ाते थे तो नियत बताते थे, एक मौलवी साहब आए वही से जनाजा पढ़ा दिया, नियत नहीं बताया, कुछ जानते नहीं है। जिस मौलवी ने इल्मे दीन हासिल करने के लिए 15 साल तक मदरसे की चटाई पे सो करके अपनी जिंदगी बसर की हो, जिसने मदरसे में के अंदर दाल के नाम पर नमक डला हुआ ऐसा दाल खाया हो, पानी पिया हो, जिससे वजू और गुस्ल जायज हो जाए मेरे दोस्त, वो अगर आपको जनाजे की नियत न बताए, होटलों पर बैठ करके उसे जाहिल डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिंदगी भर तुम्हें नमाज़े जनाजा की नियत तक याद नहीं है, सबसे बड़े मुफ्ती तुम बने फिर रहे हो। आज ये जनाजा के पहले नियत, मैं कहता नियत नाम है दिल के इरादे का, नियत नाम है दिल के इरादे का। घर से सोच के ये नहीं कहते कि बारात जा रहा हूँ, घर से तो सोच के गए थे कि जनाजा पढ़ने जा रहा हूँ, और नियत तो तुम्हारी घर पे हो गई। इमाम साहब ने कहा अल्लाह अकबर, तू भी कह ले अल्लाह अकबर, तेरी नियत हो गई। लेकिन अब पहली तकबीर के बाद पढ़ना क्या, भी तो याद होना चाहिए।
दूसरी तकबीर के बाद क्या पढ़ना वो भी याद होना चाहिए, तीसरी तकबीर के बाद क्या पढ़नी वो भी याद होना चाहिए, पहली तकबीर के बाद सना। यहाँ तक कुछ गनीमत है जो लोग नमाज पढ़ते थोड़ी बहुत तालीम हासिल किए याद है। दूसरी तकबीर के बाद दुरूद इब्राहिम जो नमाजों में तहियात के बाद आप पढ़ते हैं वो दुरूद पढ़ी जाती दूसरे तकबीर के बाद, वहाँ तक गनीमत है। कुछ लोगों को 10-20% याद है, लेकिन नमाज जनाजा में मैयत के लिए तीसरी तकबीर के बाद जो खास दुआ पढ़ी जाती है आज 95% मुसलमानों को याद नहीं है, नहीं याद। फिर आप गए थे कहाँ गए थे? वापस घर आए, बीवी ने पूछा कहाँ गए थे? कहा फलाने का जनाजा पढ़ने गए थे। गाँव वालों ने पूछा कहाँ गए थे? जनाजा पढ़ने गए थे। हमारा रिश्तेदार मर गया था, जनाजा पढ़ने गए थे। हम कहते जनाजा पढ़ने नहीं गए थे, जिंदगी पर धोखा देने से पेट नहीं भरा था, इसलिए मरने के बाद एक बार और धोखा देने गए। इसलिए कि आका फरमाते इस तरीके से नमाज जनाजा पढ़ना कि जनाजा की दुआ याद ना हो, ये मुर्दे के साथ धोखा है, ये मुर्दे के साथ धोखा है। आप आज हम इल्म से इतना दूर जा चुके, आज हम इल्म से इतना दूर जा चुके